So today I want to talk to you about salvation. तो आज मैं उद्धार के बारे में बात करना चाहता हूँ। And also this church, we exist to get people saved. और ये कलीसिया हम अस्तित्व में इसलिए ताकि लोगों का उद्धार हो And people should walk with the Lord. और लोगों ने प्रभु के साथ But the चलना first है। thing is you should get saved. लेकिन पहली चीज है कि उद्धार होना है। Can I hear an amen? Amen. Okay. And I want to encourage all of you people, see that every person in your family gets saved. और मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपने देखना है कि आपके परिवार के हर एक सदस्य का उद्धार जरूर हो। Yeah. Whatever it is, even on their deathbed, don't give up because that's the last shot. कुछ भी क्यों ना हो, वो जब मर भी रहे लेकिन Yeah. आपने हार नहीं मानना है। Yes, and we can give you testimonies of how God has graciously served people even on their deathbed. हम आपको गवाहियाँ दे सकते हैं कैसे प्रभु ने मदद की है लोगों की जब वो मरने पर है तब Yeah, भी। don't give up. Okay. हार मत मानना। Okay, so today I want to talk to you about salvation. Why is because this month we are going to focus on getting people saved. हम उद्धार के बारे में आज बात करेंगे कि ये महीने में हम ध्यान देंगे ये कि लोगों का उद्धार जरूर If हो। somebody is drowning अगर कोई डूब रहा है and you know how to swim, और आप जानते हो तैरना, what will you do? क्या करोगे? You will save the आप person. उसे बचाओगे। Yeah, I want to tell you मैं कहना चाहता and हूँ, encourage you. उत्साहित करना This चाहता हूँ, month try to save one soul. ये महीने में कम से कम एक आत्मा का उद्धार हो Tell your आपके neighbor, द्वारा। yeah, get a person saved in the name कैसे of भी एक व्यक्ति Jesus. का उद्धार हो जाए आपके द्वारा। Yeah, अभी बाजू वाले को बोला नहीं, no problem. Okay, some of us we have never done it, but this month let that miracle happen in Jesus' हम name. में से कुछ लोग ने शायद ये कभी नहीं किया लेकिन ये महीने में वो चमत्कार जरूर होने दो। Okay, praise God. Now, what is the gospel? सुसमाचार है क्या? Yeah, if you want, you can write it so you understand. Okay, लिख सकते better. हो। What is the gospel? सुसमाचार क्या है? It's a good news. ये अच्छी खबर है। Okay, suppose you hear that there's a flat being sold 2 BHK, for 20 lakhs. अगर आप सुनते हो कि 2 BHK का घर बिक रहा है 20 लाख में, So the next question you'll ask, you know what? दूसरा सवाल आप क्या पूछोगे? Where is that flat? कहाँ पर है वो फ्लैट? So the flat is in Lokhandwala. लोखंड वाला में वो फ्लैट है। So will you get excited? आप Yeah. उत्साहित होंगे क्या? Yeah. Okay. So you'll go searching for the flat, आप right? ढूंढते जाओगे उस घर Yeah. को। And what will you say? और क्या कहोगे? It's unbelievable. ये विश्वास नहीं कर सकते वैसा है। Yeah, it's unbelievable. विश्वास नहीं कर सकते। I think today maybe 2 BHK, maybe 2.5, 3 crores in Lokhandwala. I think so. Yeah. So if anybody says, I'm going to give you a flat for 20 lakh, अगर कोई आपको कहता है मैं आपको घर दूंगा 20 लाख में, what will you say? आप क्या कहोगे? It's too good to be true. Okay, now when you look at the good news, जब आप अच्छी खबर या सुसमाचार को it देखते is हो, so good, इतना अच्छा है, so good इतना अच्छा है, that it is hard to find, it's hard to believe it is true. ये कठिन होता है कि विश्वास करने के लिए कि सच में ये क्या सच है भी। Yeah, what is so good about the gospel? ये सुसमाचार के बारे में इतना अच्छा है क्या? In one shot, एक ही झटके में all your sins are washed away. सारे पाप धो दिए जाते हैं। So what is the good news? तो ये सुसमाचार है क्या? Yeah, please write. What is the good लिख news? लीजिए। It's a person, ये एक व्यक्ति है, and his name is Jesus. उसका नाम यीशु है द्वारा। Okay, Matthew 1:21. मत्ती 1 और 21। So the gospel is not a religion, तो सुसमाचार एक धर्म नहीं है, it's a person. व्यक्ति है। The gospel is not the church, सुसमाचार कलीसिया भी नहीं है, it's a person. व्यक्ति है। Can I hear an amen? Jesus was given a name. यीशु को एक नाम दिया गया What था। was that name? क्या था नाम? Jesus. यीशु। And that name means what? और वो नाम का मतलब क्या है? He will save his people from their sins. वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। So what is the good news? तो अच्छी खबर है क्या? It's about a person. ये व्यक्ति के बारे में And he है makes an offer. और वो एक ऑफर करते हैं हमें And he says, और वो कहते हैं I can save you from all your sins. तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से बचा सकता हूँ। Can I hear an amen there? All right. Now let me just put in the gospel 3 things are very important. सुसमाचार में 3 चीजें बहुत महत्व की है, Very important. बहुत महत्व की। 1 Corinthians 15 verse 3 and verse 4. पहला कोरिन्थियों 15 में 3 और 4। Okay, 3 things over there. 3 चीजें हैं वहाँ पर। The first thing, पहला, Jesus died for our sins. यीशु हमारे पापों के लिए मरे। Yeah, you may know all these things, but I want to hear an amen. ये Okay? सब आप जानते होगे लेकिन मैं आमीन सुनना चाहता Yeah, हूँ। because sometimes simple truths, which are the deepest truth, we begin to slowly forget about it. क्योंकि कभी-कभी ये साधारण से सच्चाई जो इतनी गहरी है हम उन्हें Yeah. भूलने लगते हैं। They are the foundation of our life. ये हमारे जीवन की नींव है। Number 2, दूसरा, he was buried.
उनको गाड़ा गया। Number 3, तीसरा, he rose up from the वो dead. फिर से मरे हुए में से जी उठे। जा So रहे your Jesus आपका यीशु is alive. वो जिंदा है, He's here right यहाँ now. पर है, He's next to you. आपके बाजू में In the है, name of Jesus, he's here. वो यहीं पर है। Where 2 or 3 are gathered in my name, I'm there because I'm alive. जहाँ कहीं भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं वहाँ पर हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। I was once dead, एक बार मैं मरा हुआ but था, now I am alive forever. अब हमेशा के लिए मैं जिंदा हूँ। Can I hear an amen? Amen. Okay. So why should I give the gospel? तो मुझे ये सुसमाचार क्यों बांटना है? Yeah, number 1, पहली बात, because Jesus gave the good news to everybody. क्योंकि यीशु ने ये अच्छी खबर सबके लिए लाए हैं। One day Jesus was walking on the road, एक दिन यीशु सड़क पे चल रहे थे, and suddenly there was a small man. Anybody knows the small man in the Bible? एक नाटा व्यक्ति आता है। Zacchaeus. Yes, Zacchaeus. Zacchaeus. Yeah. So he wanted to see Jesus, ज़क्कियस यीशु को देखना चाहता but he था। was a very rich man, बहुत अमीर था, but very corrupt man. बहुत भ्रष्टाचार से भरा, But he wanted to see Jesus. लेकिन वो यीशु को देखना So he चाहता था ran ahead, climbed a tree, और वो आगे दौड़कर एक पेड़ पे चढ़ गया and Jesus, when he came under the tree, और यीशु वो पेड़ के नीचे से जब गुजर रहे looked थे up, उन्होंने ऊपर देखा said, "Come down. और ज़क्कियस से कहा नीचे आओ, Today I want to stay in your house." आज मैं तुम्हारे घर में रहना चाहता हूँ। Good news. अच्छी खबर, Jesus always goes to people who are sinners. यीशु हमेशा ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो पापी है। And if you have a relationship with Jesus, और अगर आपका रिश्ता है यीशु के साथ, go to the sinners. जाओ पापियों के पास, Oh, amen नहीं बोल रहे हो? Yeah, go. जाओ। Go and tell them what Jesus has done for you. जाकर बताओ उनको यीशु ने क्या किया है आपके लिए। Has Jesus done anything for you? क्या यीशु ने कुछ भी किया है आपके लिए? I was here, but now here I am. मैं वहाँ था लेकिन अब यहाँ हूँ, I was here, मैं यहाँ था but now I am अब here. यहाँ हूँ। And all glory to God. सारी महिमा प्रभु को मिले। Can I hear an amen? Amen. So when Jesus said that, the people over there, they say, "Oh, he's going to a sinner's house." जब यीशु ने ज़क्कियस से कहा मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ तो सारे लोग जो वहाँ खड़े थे वो कह रहे वो पापी के घर पे But जा the रहे moment हैं। he went inside, लेकिन जब वो अंदर गए something happened. कुछ तो हुआ। I want to tell you, मैं the कहना moment चाहता हूँ, Jesus comes, जिस वक्त यीशु आते हैं ना and if your heart is open, और अगर आपका हृदय खुला है changes will happen. बदलाव आएंगे। And I pray और मेरी प्रार्थना this month, ये महीने में in your life, आपके जीवन में, in my life, मेरे जीवन में, through our life, हमारे जीवन के changes will happen in Jesus' name. बदलाव जरूर आए यीशु के Come on, नाम। I think you should give the Lord a big hand. Luke 19 verse 9. लूका 19 में 9। Yeah, see what Jesus is saying. देखो यीशु क्या कह रहे हैं। Standing in the house of a sinner, एक पापी के घर में खड़े रहकर वो कह रहे हैं he says, "Salvation has come to this house today." आज उद्धार आया ये घर में। So when he said this, तो जब यीशु ने कहा ये, what happened? Salvation means his sins were all forgiven. उद्धार का मतलब उसके सारे पाप क्षमा हो गए। Okay, now Bible doesn't tell me that he cried loudly and he said, "Lord, forgive me, I'm a sinner." बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि उसने जोर जोर से चिल्लाया और कहा मुझे क्षमा करो मैं पापी हूँ। But Luke 19 and verse 8 says, be with me. लूका 19 और 8 में लिखा है, Beautiful thing happened. बहुत सुंदर चीज हुई यहाँ We पर। see the fruit of repentance over here. हम यहाँ पर पश्चाताप का फल देखते हैं। And this month I pray, और ये महीना मैं प्रार्थना करता Jesus हूँ will walk into our imperfections यीशु हमारी असिद्धताओं में आ जाए and he will do something और कुछ तो करे, where fruits of repentance will be seen in our lives. यहाँ पर पश्चाताप के फल हमारे जीवन में दिखाई दे। दिखाई देंगे। बाजू वाले को बोलना फल आने वाला है। The fruit is going to be seen in the name of वो Jesus. फल दिखाई देगा यीशु के नाम Okay, में। so what was the fruit? तो क्या था फल? Zacchaeus told the Lord, ज़क्कियस ने प्रभु से कहा, "Yeah, Lord, प्रभु half my wealth I'm giving to the poor." आधी मेरी संपत्ति गरीबों में मैं बांटने वाला हूँ। आप सोच के देखो, एक आदमी जो दूसरों से चुराता था, दूसरों से पैसा खींच के निकालता था, यीशु के सामने खड़ा है और जैसे यीशु के सामने पता नहीं क्या क्या बात हुआ है, लेकिन उसका जो जवाब है वो ये है, "Lord, half my wealth I'm giving to the poor." प्रभु मेरी आधी संपत्ति मैं गरीबों में बांट दूंगा। Can I tell you, don't be afraid to allow Jesus to come into your imperfections. डरो मत यीशु को आपके असिद्धताओं में आने देने से। यीशु को आपके अस्तित्वता में आने के लिए परमिशन दो, क्योंकि वहां पर फल आने वाले हैं यीशु के नाम में। Amen. Can I hear an amen there? Amen. And then he said, और फिर if कहा, I've taken from anybody, अगर मैंने किसी से कुछ भी लिया है, I'll give 4 times. 4 गुना लौटाऊंगा। आप सोच के देखो क्या हुआ। क्या हुआ?
What is repentance? पश्चाताप क्या है? When the kindness of God hits you, जब प्रभु की दया आपको आकर लगती है, your life Amen. changes. आपका जीवन बदल जाता है। That's what will happen when Jesus comes. वही होता है जब यीशु आते हैं। Yeah, and God is saying, open your mouth, tell people about me. और प्रभु कह रहे अपना मुंह खोलो, दूसरों को मेरे बारे में बताओ। And all God's people say, Amen. Amen, 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 Amen. So why should we share the gospel? तो क्यों हमने सुसमाचार बांटना है? Because Jesus did it. क्योंकि यीशु ने भी किया। And Jesus told Peter, और यीशु ने पतरस से कहा, I'm going to make you a fisher of men. मैं तुम्हें मच्छी पकड़ने वाला बनाऊंगा। आज तक तू मच्छी पकड़ता था, लेकिन अब से मच्छी पकड़ने के समय क्या होता है पता है क्या? Matthew chapter 4 verse 19. मत्ती 4 में 19। Jesus said to them, follow me. यीशु ने कहा मेरा पीछा करो। I will teach you how to bring in people. मैं तुम्हें सिखाऊंगा लोगों को कैसे अंदर लाना है। Okay. So when you catch a fish, what are you doing? जब आप मच्छी पकड़ते हो तो क्या करते हो? You are bringing the fish out of something. आप मच्छी को कोई चीज में से बाहर ला रहे हो। कहाँ से बाहर ला रहे हो? पानी। पानी में से। Simple. You are removing that fish from one kingdom. आप मच्छी को एक राज्य में से बाहर निकाल रहे हो। उस राज्य को कहते हैं पानी का राज्य, उसमें से तुम उसको बाहर ला रहे हो। वैसे प्रभु क्या कह रहा है पतरस को, मैं तुझे सिखाऊंगा कैसे लोगों को अंधकार से बाहर निकालकर Amen. मेरे राज्य में लाना है। Amen. Okay, number 2. दूसरी बात, Why should you share the gospel? हमने क्यों सुसमाचार बांटना है? Are you ready? You are the ambassador of God. आप प्रभु के प्रतिनिधि हो। Yeah, ambassador ही बोलो। राजदूत। राजदूत। 2 Corinthians 5:20. दूसरा कोरिन्थियों 5 में 20। Okay, now who are you? This is your identity. ये आपकी पहचान है। Yeah, we are हम Christ's ambassadors. यीशु के राजदूत है। If I would have said, today you are being decorated as the general manager of your company, you would have just got excited. अगर मैंने कहा होता आज तुम अपने कंपनी के जनरल मैनेजर बनने वाले हो तो कितने उत्साहित होते आप। That is nothing. That is only for this life. It will be over. वो सब ये सिर्फ ये जीवन के लिए और समाप्त हो और वो जाएगा। भी 4, 5, 10 साल के लिए। जब बूढ़े होगे ना, आपको बोलेंगे कुर्सी छोड़ के बाहर जाओ, लेकिन ये राज्य में आपको कभी बोला नहीं जाएगा कुर्सी छोड़ो करके। Amen. कभी नहीं बोलेगा। In this kingdom, the kingdom of God, never, whatever God gives, it's given. प्रभु के राज्य में जो दिया गया है वो दिया गया है। Can I hear an amen? Amen. Okay, so who are you? आप कौन हो? You're Christ ambassador. आप यीशु के राजदूत हो। Wow. Okay, Colossians 1:13. Okay. कोलोशियंस 1 और 13। Whenever we say ambassador, we are talking about a kingdom. जब भी हम राजदूत कहते हैं तो कोई राज्य के बारे में बात कर रहे Yeah, हैं। and spiritually there are only 2 kingdoms. और आत्मिक रूप में सिर्फ 2 राज्य है। Only 2 kingdoms. 2 ही राज्य है। One, पहला darkness. अंधकार का राज्य, Two, दूसरा light. प्रकाश। Yeah. कोई आमेन नहीं बोला है। Okay, so the day you told Jesus, Lord, I'm a sinner. तो जिस दिन आपने यीशु से कहा प्रभु मैं तो पापी हूँ, Please save me. कृपया करके मुझे बचाओ। Big hand came. एक बड़ा हाथ आया, Hand of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का हाथ took you आपको पकड़ा and pulled you out और बाहर निकाला and put you in a new kingdom. और एक नए राज्य में डाल दिया। And that day a declaration was और made. उस दिन एक घोषणा की गई, Today आज you are the ambassador of God. आज से आप प्रभु के राजदूत हो। So what does an ambassador do? तो राजदूत क्या करता है? What does an ambassador do? क्या करता है वो? Number 1, पहला, you represent Jesus. आप यीशु को का प्रतिनिधि हो। Yeah, 2 Corinthians 5:20. दूसरा कोरिन्थियों 5 में 20। We are Christ's ambassador. हम यीशु के राजदूत हैं। That means you represent him. इसका मतलब आप यीशु के प्रतिनिधि हो। If you are an Indian ambassador in US, अगर आप इंडिया के राजदूत हो जो यूएस में है, so when you talk, तो जब आप बात करते हो who do you talk for? किसके लिए बात कर रहे हो? India. इंडिया के लिए बात कर रहे Can हो। I hear an amen? Amen. So when the Bible says you are an ambassador for Jesus, जब बाइबल कहते हैं कि आप यीशु के राजदूत हो, number 1, पहला, you represent आप Jesus. यीशु के प्रतिनिधि हो। Right over there, not yourself. और लिखो वहाँ पर खुद के नहीं, You're not representing yourself. खुद को नहीं प्रतिनिधित्व कर You are रहे हो। representing a person. आप एक दूसरे व्यक्ति को प्रतिनिधित्व His कर रहे हो। name is उसका नाम है Jesus. यीशु। Number 2, about the ambassador. दूसरी बात राजदूत के बारे में, Yeah, you have a message. आपके पास एक संदेश है। Yeah, we speak for Christ. हम मसीह के लिए बात कर रहे हैं। Yeah, you have a message, आपके पास संदेश है, but whose message is it? लेकिन किसका संदेश है वो? Jesus' message. यीशु का संदेश है। Can I Amen. hear an amen there? Amen. Amazing.
Amazing. You represent Jesus. आप यीशु के प्रतिनिधि हो, You have a message. आपके पास एक संदेश है, But the message is about Jesus. लेकिन वो संदेश यीशु के बारे में है। And what does that message look here? और वो संदेश क्या है? Come back to God. प्रभु के पास लौट कर आ जाओ। Simple message. बहुत आसान सा संदेश Come है, to God. प्रभु के पास आओ। That means man was with God, man walked away from God. Now God is saying, come to God. इसका मतलब मनुष्य प्रभु के साथ था, प्रभु से दूर हो गया, प्रभु कह रहे लौट के आ जाओ। Yeah, that's our job. ये हमारा काम है। Yeah. See, we all say we are believers, but are we living like an ambassador? हम सब कहते हैं हम विश्वासी है, लेकिन क्या हम राजदूत के जैसे जी रहे हैं? Yeah, राजदूत के जैसे जियो। आप एजुकेटेड अनएजुकेटेड हो उससे फर्क नहीं गिरता है, आप लंबे हो छोटे हो उससे फर्क नहीं गिरता, आप अमीर हो गरीब हो उससे कुछ फर्क नहीं गिरता है, लेकिन आपने यीशु के बारे में लोगों से बात करना है और लोगों को कहना है प्रभु आपको बुला रहा है यीशु के नाम में। नंबर 3 in that as a ambassador. राजदूत के बारे में तीसरी बात, Yeah, number 3 you have authority. आपके पास अधिकार है। Yeah, this is powerful. ये बहुत सामर्थ्य You है। have authority. आपके पास अधिकार है। Luke 10 verse 19. लूका 10 में 19। But you should know who are you? लेकिन आपको जानना है कि आप कौन हो। Ambassador of God. प्रभु के राजदूत You हो, represent Jesus. यीशु के प्रतिनिधि हो। Your message is about God. आपका संदेश प्रभु के बारे में है, That's why इसलिए you are backed with authority. इसलिए आपको अधिकार दिया जाता है। Yeah, पूरा स्वर्ग आपके पीछे खड़ा रहता है आप जब बात करते हो। आमेन। मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है गॉस्पल देते हुए, बड़े बड़े लोगों को, और ऐसे भी जो यू नो वो बोलते हम ये करेंगे वो करेंगे, वो बोलते अंकल आप कुछ करो मत, मुझे सिर्फ आपको इतना बताना है आपसे यीशु बहुत प्यार करता है, बस हमें दूसरा कुछ बोलना नहीं, तेरा ये मेरा बड़ा तू छोटा, हम बहुत बड़े तुम नीचे हम बहुत ऊपर, नो 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 ना, हम ना तो नीचे ना तो ऊपर है, हमें सबको प्रभु ने आप उसके लहू के द्वारा धोकर शुद्ध किया है, और हम लोगों से यही कह रहे हैं आप आइए क्योंकि प्रभु आपको बुला रहा है। कम बैक टू द लॉर्ड। प्रभु के पास लौट के आओ। Can I hear an amen there? Amen. So you have authority. तो आपके पास अधिकार है। Okay, number 4. चौथी बात, Okay, this is important. ये महत्व का You है, have protection. आपके पास सुरक्षा भी है। उसके लिए लाल गाड़ी जाते रहती है आगे पीछे, आगे 4 पिस्टल वाले पीछे 4 पिस्टल नहीं, जो भी मशीन गन वाले। हम लोगों को गन और मशीन गन वाले नहीं चाहिए, हमारे साथ है चलते, आगे चलते पीछे चलते, हाँ वो चलते हैं और आप उनका अनुभव करने वाले हो यीशु के नाम में। And the Bible says, look here, nothing shall by any means hurt you. कोई भी चीज तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगी। Yeah, an ambassador is protected by God. जो राजदूत है प्रभु का, वो प्रभु के द्वारा सुरक्षित रहता है। सभी राजदूत लोग जरा हाथ उठाकर जरा जोर से हालेलुया कहे। Okay, so as an ambassador, what should you do? तो एक राजदूत होने के नाते आपने क्या करना है? Tell people, लोगों से कहो come to Jesus. यीशु के पास आओ, Come to Jesus. यीशु के पास आओ। Number 3. तीसरी बात, Why should I share the good news? मुझे ये सुसमाचार क्यों बांटना है? Why? क्यों? Because there is no plan B. क्योंकि कोई दूसरा प्लान है ही नहीं, दूसरी योजना नहीं है। नहीं, इधर से भी आता है, इधर से भी आता है, इधर से भी आता है, इधर से भी आता है। Okay, let's look at it. Acts chapter 4 verse 12. प्रेरितों के कार्य 4 में बात। There is no salvation other than the name called Jesus. और कोई उद्धार है ही नहीं सिवाय के यीशु के नाम में। Yeah, there is salvation in no other name than the name called Jesus. उद्धार और कोई नाम में नहीं है सिवाय के यीशु नाम। That means there is nothing called another way or something. तो दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। Okay, now, okay. Why only Jesus? Only क्यों Jesus. सिर्फ यीशु? Okay, number 1, पहली बात, because Jesus was born without sin. क्योंकि यीशु का बिना पाप के जन्म हुआ है। Yeah, Matthew 1:20. मत्ती 1 और 20। Joseph was told, Mary's husband was told, मरियम के पति को कहा गया था, yeah, the child in Mary's womb जो बच्चा मरियम के गर्भ में है is from not a man, कोई मनुष्य से नहीं है, from God. परमेश्वर से है। Very important. Can I hear an amen? So Jesus was born without sin. तो यीशु का जन्म बिना, Okay, so Jesus, amazing person. यीशु अद्भुत है। Yeah. So when he was born, he was without sin. जब उनका जन्म हुआ बिना पाप के थे, Just like Adam.
आदम के जैसे। Nobody said an amen. Adam was born without sin. जब आदम का जन्म हुआ वो भी पाप के बिना था। Yeah, it's just that the Holy Spirit did not use a womb, पवित्र आत्मा ने गर्भ का इस्तेमाल नहीं किया था आदम के लिए, but he was made out of the dust. लेकिन उसको मिट्टी में से बनाया गया। And then God breathed into फिर him. प्रभु ने अपनी श्वास को फूका। Yeah, so when he was not born of sin, तो जब उसका जन्म हुआ तो पाप नहीं था, but he chose to sin. लेकिन उसने चुनाव किया पाप But what करने about के। our Jesus? लेकिन हमारे यीशु के बारे में क्या? Please write. Jesus never knew sin. यीशु को पाप क्या है वो ही नहीं पता था। I celebrate Jesus because he never knew sin. That means he never tasted sin. यीशु ने कभी पाप चखा नहीं। Next, write this. He was without sin. आप लिख लीजिए, वो बिना पाप के थे। Hebrews 4:15. इब्रानियों 4 He में was 15। without sin, पाप के बिना थे, tempted like us, हमारे जैसे परखे गए, but without sin. लेकिन पाप नहीं किया। Number 3, write that one more तीसरी thing. बात, Okay, he committed no sin. कोई भी पाप नहीं किया। Yeah. First Peter chapter 2 पहला verse 20. पत्रस 2 में 22, He committed no sin. उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया। But then this person और उसके बाद was taken by God, ये व्यक्ति को प्रभु ने लिया and God made him a sin. और प्रभु ने उनको पाप बनाया। बनाया, हमारे लिए बनाया. That is the big good news. ये अच्छी खबर है। This season, ये मौसम में please begin to pray. प्रार्थना करना शुरू करो। Yeah. Number 2, दूसरी बात, start inviting people. लोगों को इनविटेशन देना शुरू करो। खाने पे बुलाओ, ओके, चाय पे बुलाओ। वो बोलेगा कभी बुलाते नहीं, आज बुलाया, हाँ बोलना, आज मैं बदल रहा हूँ, आजा आजा। ओके, yeah, just do it, करोगे। okay, yeah, okay. First Peter 2:24, okay. पहला पत्रस 2 में 24। So what did Jesus do? तो यीशु ने क्या किया? Yeah, without sin when he was born, बिना पाप के उनका जन्म हुआ, did not sin any time, कभी भी पाप नहीं किया, but now लेकिन अब he dies for our sins. हमारे पाप के लिए मरते हैं। Yeah, sins, okay. He dies for our sins. हमारे पापों के लिए मरते हैं। Our lives, हमारे everything, whatever we do, he dies for that. सभी चीज जो हम करते हैं उसके लिए प्रभु यीशु मरते हैं। Matthew 12:33. मत्ती 12 में 33। Man's nature is to sin. वैसे ही मनुष्य का स्वभाव पाप करना है। But the Bible says, बाइबल में लिखा है, if you make a tree good, अगर एक पेड़ को अच्छा बनाते हो स्वभाव में, in its nature, स्वभाव में, then the fruit will be good. तो उसका फल अच्छा आएगा। You know what Jesus did? पता है यीशु ने क्या किया? He took your sin nature. यीशु ने आपका पाप का स्वभाव लिया। स्वभाव लिया है. 2 Corinthians 5:21. दूसरा कोरिन्थियों 5 में 21। Yeah, he became a sin for you. आपके Okay. लिए पाप बन गए। Yeah, वो उसने आपके पाप के स्वभाव को भी लिया है, सिर्फ पाप के जो क्रिया है वही नहीं, लेकिन आपका जो पाप का स्वभाव है ना, उससे भी प्रभु ने लिया है यीशु के नाम में। Amen. Yeah, he became a sin, not sins, sin singular. It speaks about the nature of sin. ये पाप के स्वभाव के बारे में बात है। Yeah, he took your sin nature. यीशु ने आपका पाप का स्वभाव लिया He took also the acts of sin, whatever you have और done. पाप के जो कार्य है आपने जो भी किया है वो भी ले लिया। Are you okay? And what did he do? और क्या किया? Look at this. Colossians 2:11. कोलोशियंस 2 में 11। Yeah, the moment you came to Jesus, जिस वक्त आप यीशु के पास आए, yeah, there was a spiritual circumcision which took place. एक आत्मिक खतना हुआ। Yeah, he has cut off उन्होंने काट दिया है your old nature which made you do bad things. वो आपका पुराना स्वभाव जिसके कारण आप बुरी चीजें कर रहे थे। उसे काट दिया है यीशु के नाम में. Amen. So something inside your spirit, okay, has been cut off तो completely. आपके अंदर, आपके आत्मा में कुछ तो अंदर वो काटा गया है। यानी जो टेढ़ापन था ना, प्रभु ने उसे निकाल दिया. Amen. अभी आपके जीवन में अच्छे फल आ सकते हैं यीशु के नाम में. Amen. Can I hear an amen? Amen. Okay. Now you may say, but pastor, I still struggle in my mind, आप कहेंगे मैं अभी भी मेरे मन में संघर्ष करता हूँ, in my emotions. मेरी भावनाओं में। Yes, yes, yes. ये जो काटा काटी हुई है ना, वो आपके आत्मा में हुआ है.
लेकिन आपका जो मन है, भावनाएं हैं, इच्छा है ना, उस पे अभी भी पाप का असर है। लिख लो, द इफेक्ट ऑफ sin is still there on your mind, on your emotions. आपके मन और भावनाओं के ऊपर अभी भी पाप का असर है। इसलिए बाइबल कहते हैं आपके मन को नया करो। Amen. रोमन्स 12:2, आपके मन को नया करो। नया करोगे तो फल और देखोगे यीशु के नाम में। सो व्हाट शुड आई डू पास्टर नाउ? तो मैंने क्या करना है पास्टर? ओके, सो यू हैव द गुड न्यूज। आपके पास सुसमाचार है, यू आर सेव्ड। आपका उद्धार हुआ है, You follow Jesus. आप यीशु का पीछा कर रहे हो, You're an ambassador. आप प्रभु के राजदूत हो, And you know what Jesus has done for you. और आप जानते हो यीशु ने आपके लिए क्या किया And है, you know there is no other way. और आप ये भी जानते हो कि और कोई मार्ग है ही नहीं। Okay, so what should I do? तो मैंने क्या करना है? Number 1, पहली बात, start praying for people. लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दो। Yeah. Everybody. सब लोग कर, Pray for whom? किसके लिए प्रार्थना? The ones you love. जिसे आप प्यार करते हो। कितने लोग चाहते हैं कि सब लोग स्वर्ग जाना है करके? Yeah, okay. So start praying. That's the first step. तो प्रार्थना करना शुरू करो, ये पहला कदम। Yeah. Number 2, दूसरी बात, ask the Lord for opportunity to share the gospel. प्रभु के पास ऐसे मौके मांगो जहाँ पे आप सुसमाचार बांट सकते Yes, ask for opportunity. हो। मौका, God will give you opportunity. और प्रभु आपको जरूर ऐसे मौके देंगे। And number 3, तीसरी बात, bring them to the house of God. प्रभु के घर में उनको लेकर आओ, God will meet them. प्रभु जरूर उनको मिलेंगे। And all God's people say, सभी लोग कहे Amen. आमेन।